وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ مال گاڑی نے مجھے دلی کے بجائے بانڈا پہنچا دیا تھا، جو وسطی انڈیا کے مشرق کی جانب ایک مشہور شہر ہے۔ اس طرف سے گاڑیاں صوبہ بہار، بنگال اور نیچے دوسرے شہروں کی طرف جاتی تھیں۔ میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اسٹیشن پر چل کر معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں سے دلی کی گاڑی کب جاتی ہے۔ میں ریلوے لائن والی دیوار کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ آگے ریلوے اسٹیشن کی عمارت آ گئی۔ یہ اسٹیشن چھوٹا نہ تھا، بس درمیانے درجے کا اسٹیشن تھا۔ اسٹیشن کے باہر تانگے اور رکشے کھڑے تھے۔ میں نے انکوائری آفس کی کھڑکی پر جا کر پوچھا کہ دلی کو گاڑی کس وقت جائے گی۔ کھڑکی کے پیچھے سانولا سا دبلا پتلا آدمی بیٹھا تھا۔ بڑی بیزاری سے بولا، یہاں سے پہلے کانپور جاؤ، وہاں سے تمہیں الہ آباد سے آنے والی گاڑی دلی لے جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کانپور کو گاڑی کب جائے گی۔ اس نے اور زیادہ بیزاری سے جواب دیا، رات کو 2:30 بجے جائے گی۔ میں کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب مجھے رات کے 2:30 بجے تک اسی شہر میں رہ کر کانپور جانے والی گاڑی کا انتظار کرنا ہوگا۔ اسٹیشن پر ٹھہرنا ٹھیک نہیں تھا، ویسے بھی ابھی رات کے 2:30 بجنے میں کافی گھنٹے باقی تھے۔ بانڈا شہر میرے لیے اجنبی تھا، اس طرف میں کبھی نہیں آیا تھا۔ میرے پاس رقم کافی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے کسی اونچے درجے کے ریستوران میں چل کر بیٹھتا ہوں، وہاں کسی کو مجھ پر شک نہیں پڑے گا۔ شہر میں ادھر ادھر پھرنے سے کوئی بھی مجھ پر شک کر سکتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر پولیس ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے باہر آ کر ایک تانگا لیا اور کوچوان سے کہا کسی اچھے سے ہوٹل میں لے چلو جہاں اچھا کھانا ملتا ہو۔ ہوٹل میں نے اس لیے کہا تھا کہ شاید ریستوران اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ شہر کی مختلف سڑکوں پر گھماتا ہوا شہر کی ایک بڑی سڑک کے کنارے واقع ایک ہوٹل پر لے آیا جس کا نام الیگزینڈریا ہوٹل تھا۔ یہ واقعی ہوٹل تھا، یعنی یہاں رہنے کے لیے کمرے بھی مل جاتے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک کمرہ ہی کرائے پر لے لوں، بڑی تنہائی میں وقت گزر جائے گا۔ آدھی رات کو نکل جاؤں گا۔ کاؤنٹر پر ساڑی پوش کٹے بالوں والی قبول صورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا مجھے ایک کمرہ چاہیے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ اکیلے ہی کمرے میں رہیں گے؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا، جی اکیلا ہی، اگر کوئی میرے ساتھ ہوتا تو وہ بھی ضرور میرے ساتھ ہی رہتا۔ وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ اس نے ایک سنگل بیڈ کمرے کا 24 گھنٹے کا کرایہ 50 روپے بتایا۔ اس زمانے میں یہ کرایہ بہت زیادہ تھا، مگر میری مجبوری تھی، میں نے کمرہ لے لیا۔ میں نے وہاں اپنا ہندوانہ نام کمل کمار لکھوایا اور ایڈریس بھی دلی کا غلط لکھوا دیا۔ 50 روپے ادا کیے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے گھنٹی بجا کر نوکر کو طلب کیا۔ اس کو میرے کمرے کی چابی دی اور کہا، صاحب کو 16 نمبر کمرے میں لے جاؤ۔ یہ ہوٹل پرانی وضع کا انگریزی ٹائپ کا تھا، اس کی دوسری منزل نہیں تھی۔ لگتا تھا 2-3 پرانی کوٹھیوں کو ملا کر ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے۔ آگے وسیع باغیچہ تھا، کمروں کے آگے برآمدے تھے۔ لڑکا مجھے 16 نمبر کمرے میں چھوڑ کر سلام کر کے چلا گیا۔ کمرے میں وکٹورین طرز کا پرانا صوفہ اور پلنگ بچھا تھا۔ دروازے اور کھڑکی پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں ٹیلی فون بھی لگا ہوا تھا، ساتھ باتھ روم بھی تھا۔ سردی کی وجہ سے لڑکے نے جاتے ہوئے بجلی کا ہیٹر آن کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب نہا دھو لینا چاہیے، شاید پھر موقع نہ ملے۔ میں غسل خانے میں گھس گیا، اچھی طرح سے نہایا، وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے، دوسرے کوئی کپڑے میرے پاس نہیں تھے۔ تھوڑی دیر میں وہی لڑکا آ گیا، کہنے لگا، صاحب کھانا لاؤں یا کچھ اور؟ میں نے کہا، کچھ اور کیا؟ وہ ذرا ہنس کر بولا، صاحب وسکی وغیرہ؟ میں نے کہا، نہیں بھائی، میں شراب نہیں پیتا۔ تم ایسا کرو، یہ پیسے لو، میرے لیے گولڈ فلے کا ایک پیکٹ اور ایک ماچس لے آؤ اور چائے پہلے بھجوا دو۔ میں نے اسے 100 روپے کا نوٹ دیا، میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں تھے۔ 50 روپے کا ایک نوٹ تھا جو میں نے کاؤنٹر پر لڑکی کو دے دیا تھا۔ لڑکا چلا گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آئی، سر رات کے کھانے پر آپ کوئی خاص چیز پسند کریں گے؟ میں نے کہا، آپ کے ہاں جو کھانا تیار ہوتا ہے وہی کھا لوں گا، شکریہ۔ یہ کاؤنٹر والی لڑکی تھی۔ اس نے اوکے سر کہہ کر فون بند کر دیا۔ ملازم لڑکا میرے لیے چائے لے آیا، وہ سگریٹ بھی لایا تھا۔ میں نے اسے 5 روپے ٹپ دیے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے دل میں میرے لیے شاید ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگا، صاحب آپ کس شہر سے آئے ہیں؟ میں نے چائے بناتے ہوئے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ وہ میرے قریب آ گیا، بڑی رازداری کے انداز میں بولا، صاحب ہمارے ہوٹل میں ایک خفیہ پولیس کا آدمی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ مس شیلا سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ آدمی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ خفیہ پولیس کا نام سن کر میں خبردار ہو گیا۔ میں نے کہا، بھائی یہ تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو کوئی ہوٹل میں نیا مسافر آئے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ لڑکا مزید رازداری کے انداز میں بولا، نہیں صاحب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خفیہ پولیس والا آپ کے بارے میں مس شیلا سے کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی مجھے کوئی جاسوس لگتا ہے۔ کیا سر آپ واقعی جاسوس ہیں؟ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں۔
मुझे जासूस बनने का बड़ा शौक है। मेरी छठी हिस्स बेदार हो चुकी थी। उस खुफिया पुलिस वाले को कैसे शक पड़ गया कि मैं जासूस हूँ। अगर उसने मुझे जासूस समझा है तो यकीनन पाकिस्तानी जासूस ही समझा होगा, क्योंकि इंडिया में जो किसी भी मुल्क का जासूस पकड़ा जाए पुलिस यही समझती है कि ये पाकिस्तानी जासूस है। बल्कि अब तो इंडिया में वहाँ के मुसलमान हैं, पुलिस उनमें से हर तीसरे आदमी को पाकिस्तान का जासूस समझती है। मैंने लड़के को जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया। देखो, किसी को बताना मत, खुफिया पुलिस वाले की निगरानी करो, देखते रहो कि वो क्या करता है और मिस शीला से क्या बातें कर रहा है। ये मिस शीला कौन है? लड़का 10 रुपए का नोट लेकर बड़ा खुश हुआ। ज्यादा खुशी उसे इस बात की है कि उससे जासूसी की ड्यूटी पर लगाया गया। उसने नोट अपनी वॉस्कट की जेब में रखा और बोला, साहब ये मिस शीला काउंटर वाली लड़की है, बड़ी बदमाश है। रात को उसके कमरे में शहर के बदमाश आते हैं। ये रात को शराब भी पीती है। मैं इसकी सारी खबर रखता हूँ। मुझे जासूसी का शौक है। मैंने उसे मजीद एतमाद में लेते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महमूद मियाँ है। यहाँ होटल में सब लोग मुझे बिल्ले मियाँ कहते हैं। मैंने उसे कहा, अगर तुमने खुफिया पुलिस वाले की अच्छी तरह से जासूसी की और उसकी सारी बातें आकर मुझे बता दी तो मैं तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और सुनो, किसी को हरगिज पता न चले कि मैंने तुम्हें ये ड्यूटी लगाई है। मियाँ महमूद ने तजुर्बेकार जासूस की तरह आंखें जरा सी सुकेड़ कर कहा, साहब जी मैंने बड़े जासूसी नावल पढ़े हैं, क्या मजाल कि कोई मेरे दिल का हाल मालूम कर सके। लड़के की ड्यूटी मैंने जरूर लगा दी थी, लेकिन मैं खुद भी मोहतात हो गया था। मुझे ज्यादा तशवीश इस वजह से भी नहीं थी कि इस किस्म के होटलों में पुलिस का और खास तौर पर खुफिया पुलिस का एक आध आदमी जरूर बैठता है जो इस बात की खबर रखता है कि कौन बाहर से आया है और कहीं कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही या किसी वारदात के होने का अंदेशा तो नहीं। आमतौर पर इस किस्म के आदमी को अंग्रेजी होटलों वाले खुद बुलाकर रखवा लेते हैं। मुझे लड़के से तवक्को थी कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होने लगी तो लड़का मुझे आकर इत्तला कर देगा। इसके बावजूद मुझे बेचैनी सी लगी रही थी और मैं सोच रहा था कि इस होटल में मैंने आकर गलती की है। बहरहाल अब जो होना था हो गया था। मुझे आगे की बाबत सोचना था। दिन गुजर गया, रात आ गई। इस दौरान 2 बार होटल का लड़का मेरे पास आया और उसने यही कहा कि साहब पुलिस वाले ने उसके बाद मिस शीला से कोई बात नहीं की और वो होटल से बाहर नहीं गया। मैंने लड़के से पूछा, उस आदमी ने कहीं टेलीफोन भी नहीं किया? लड़का सोच में पड़ गया, फिर बोला, साहब मेरे सामने तो उसने कोई फोन नहीं किया। अगर कहीं फोन करेगा मैं आपको उसी वक्त आकर बता दूंगा। आप यहाँ से फोन पर 7 नंबर घुमाकर उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। लड़के ने मुझे ये बड़े पते की बात बता दी थी। जब वो चला गया तो मैंने टेलीफोन का डायल का 7 नंबर घुमाकर रिसीवर कान से लगाया। नीचे काउंटर वाली लड़की मिस शीला किसी मर्द से बातें कर रही थी। वो कह रही थी, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ मर्द ने एक बड़ी फौहश बात उसे कह दी, जिसके जवाब में शीला ने कहा, ये भी तब होगा जब तुम वादा करोगे कि जो बात तुमने कमला को कही है आइंदा ऐसी बात कभी नहीं कहोगे। मर्द ने कहा, शीला जी क्षमा करो, मैं वादा करता हूँ कि कमला को अब कभी मुंह नहीं लगाऊंगा। अच्छा, आज रात कितने बजे आऊं? शीला ने जवाब दिया, नहीं आज नहीं, आज रात मैं अपने अंकल के घर जा रही हूँ, कल फोन करना। और फोन बंद हो गया। मैंने फोन रख दिया। कोई आध घंटे बाद मैंने एक बार फिर 7 नंबर घुमाकर रिसीवर उठाया कि शायद खुफिया पुलिस वाला थाने वगैरह में मेरी बाबत कोई फोन ना कर रहा हो, मगर फोन पर कोई बात नहीं थी, फोन बंद था। मैंने रिसीवर रख दिया। इस ख्याल से मैं नीचे भी नहीं गया कि खामखा खुफिया पुलिस वाले की नजरों में आ जाऊंगा। मैं कमरे में ही बैठा सिगरेट फूंकता और अखबार रिसाले पढ़ता रहा। मुझे अहमदाबाद वाले अपने मास्टर स्पाई करीम का ख्याल आया कि उसे मेरी फिक्र होगी। ये तो उसे मालूम हो गया था कि मैं अहमदाबाद में रॉ के चीफ गोकुलदास पांडे के बंगले से फरार हो चुका हूँ। अब वो मेरे किसी वायरलेस पैगाम का इंतजार कर रहा होगा। ये वायरलेस सिग्नल मैं उसे दिल्ली के मास्टर स्पाई गुल खान के पास जाकर ही दे सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई रेडार ट्रांसमीटर वगैरह नहीं था और उसके फोन नंबर पर मैं किसी दूसरे शहर से फोन करके उसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। वैसे भी करीम ने मुझे इस नंबर पर फोन करने से बाज रखा था। मैंने खाना मंगवा लिया। वही लड़का खाना ले आया। कहने लगा, साहब खुफिया पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए उठ कर गया था। मैंने उसका पीछा किया था। वो साथ वाले सिनेमा हाउस में गया था। वहां का गेट कीपर उसका दोस्त है। वहां थोड़ी देर बैठकर वो फिर होटल में वापस आ गया था। मैं उस खुफिया पुलिस वाले से अब मुतमईन और बेफिक्र हो गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सपेरा उस सांप को गले में डालकर उससे बेफिक्र हो जाता है जिसका जहर निकाल दिया गया हो। रात के 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कॉफी मंगवा कर पी ली जाए। मैंने शीला को फोन पर कॉफी लाने का कहा। मैं अभी फोन करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, आ जाओ, खुला है। दरवाजा खुला और सामने मिस शीला खड़ी थी। हाथ जोड़कर बोली, सर मैंने आपको इंटरफेयर किया, सॉरी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने रिसीवर रख दिया। मैं तुम्हें फोन करके कॉफी मंगवाने वाला था। वो बोली, मैंने आपके लिए किसी दूसरी चीज का इंतजाम किया था सर। आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? किस चीज का इंतजाम?
वो सोफे पर बैठ गई। उसने पर्स में से स्कॉच विस्की का हाफ निकाल कर मेज पर रख दिया। सर, ये खास तोहफा है जो मेरी एक आंटी ने मुझे लंदन से भेजा है। मैं इस ख्याल से ले आई हूँ कि आप इसे देखकर इनकार नहीं करेंगे। मैंने शीला को इसलिए भी वापस न भेजा कि मैं उससे किसी तरीके से खुफिया पुलिस वाले की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन शराब को मैंने हाथ नहीं लगाना था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको काउंटर पर ही बता दिया था कि मैं शराब नहीं पीता। शीला ने अपने ब्लाउज को दोनों हाथों से ऊंचा किया और कहा, सर, ये शराब नहीं है, ये तो विस्की है, आप पी कर तो देखें। मगर तुम मुझ पर ये मेहरबानी किस लिए कर रहे हो? मेरे इस सवाल पर उस लड़की ने नीम तवायफाना मुस्कुराहट के साथ गर्दन को एक झटका देकर कहा, इसलिए कि आई लाइक यू सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। ये उसका कारोबारी जुमला था। होटल का लड़का मुझे इसके बारे में सब कुछ बता गया था और मैंने टेलीफोन पर किसी मर्द के साथ उसकी गुफ्तगू भी सुन ली थी, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उसके साथ सख्ती से पेश आता। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देता हूँ। बात यह है कि मैं कभी कभी विस्की जरूर पीता हूँ, मगर मैं हमेशा रात को 1 बजे के बाद विस्की पीता हूँ। अगर तुम रात के 1 बजे के बाद मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ विस्की जरूर पीऊंगा। शीला सोफे पर बैठ गई, ब्लाउज को एक बार फिर ऊपर चढ़ाते हुए बोली, मैं जाऊंगी ही नहीं 1 बजे तक, बल्कि उसके बाद भी तुम्हारे पास ही रहूंगी। मैंने सोचा कि इससे कम से कम खुफिया पुलिस वाले के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम मुझे मालूम था, मगर मैंने उस पर जाहिर किया कि मुझे मालूम नहीं। कहने लगी, मेरा नाम शीला जॉनसन है। मैंने कहा, शीला, मुझे ये बताओ कि जब मैं काउंटर पर खड़ा था तो तुम्हारी दाएं जानिब कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, क्या वो तुम्हारा फादर जॉनसन है? शीला ने उसे गाली देकर कहा, वो हरामी मेरा वफादार कहाँ से हो गया? अरे वो तो पुलिस कट आउट है, बस रात के 1 बजे तक पुलिस की ड्यूटी देता है कि होटल में कौन कौन आता है। वो तो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा था। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, कमल कुमार जी बड़े कारोबारी आदमी हैं, दिल्ली में रहते हैं, मेरे जानने वाले हैं। ये तुमने कैसे कह दिया? तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी। मिस शीला जॉनसन ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, इसलिए डार्लिंग कि तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छे लगने लगे थे। वो अपना चेहरा मेरे करीब ला रही थी कि मैंने जल्दी से उठकर कहा, मुझे याद आ गया कि मुझे अपनी पत्नी को फोन करना है। उसने कहा था कि बांडा पहुंचकर मुझे खैरियत फोन पर बता देना। मिस शीला पीछे हट गई, कहने लगी, अच्छा मैं फिर आऊंगी, तुम फोन कर लो। वो चले गई तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने स्टेशन पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपनी जेब में डिब्बी के अंदर रखे हुए च्युइंगम बम टैबलेट चेक किए। बटवे में जितने रुपए बाकी रह गए थे उन्हें गिनकर दोबारा बटवे में रखा। सामान तो मेरे पास था नहीं, बस होटल से निकलकर टैक्सी रिक्शा पकड़ना था और स्टेशन पहुंच जाना था। इंक्वायरी क्लर्क के मुताबिक दिल्ली जाने वाली ट्रेन में अभी 3-4 घंटे बाकी थे। इस ख्याल से कि मिस शीला दोबारा वारिद ना हो जाए, मैंने सोचा कि 1-1.5 घंटा पहले ही निकल जाऊं। इंडिया में टेलीविजन अभी नया नया शुरू हुआ था। कमरे में एक टेलीविजन भी रखा हुआ था जिसको मैंने अभी तक चलाया नहीं था। इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी। मैंने उसका बटन दबाया कि थोड़ी देर कोई प्रोग्राम देखा जाए। अभी टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था। इंडिया के किसी शहर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही थी। अचानक प्रोग्राम बंद हो गया और एक लेडी अनाउंसर ने सामने आकर ऐलान किया कि दरियाओं में अचानक जबरदस्त सैलाब का पानी आ जाने से इलाहाबाद, झांसी और जिला बांडा के उत्तरी इलाकों में रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। बांडा से दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद जाने वाली सारी रेलगाड़ियां कैंसिल कर दी गई थीं और महकमा रेलवे की जानिब से रेलों के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। ये खबर मेरे लिए काफी परेशान कुन थी क्योंकि मुझे बांडा से रात की गाड़ी से दिल्ली रवाना होना था। मैंने काउंटर पर फोन किया कि मुझे रेलवे इंक्वायरी का नंबर मिलाया जाए। काउंटर पर कोई दूसरा क्लर्क रात की ड्यूटी पर था, उसने नंबर मिला दिया। बांडा रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी बेहद मसरूफ थी। कई बार फोन करने के बाद नंबर मिला। वहां से इस बात की तस्दीक हो गई कि बांडा से कोई गाड़ी दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद की तरफ नहीं जा रही। उस तरफ सैलाब की वजह से सारी रेलवे लाइनें पानी में डूब चुकी थीं। मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ख्याल आया कि नीचे नागपुर, हैदराबाद की तरफ निकल जाता हूँ। बांडा से नीचे जनूबी हिंदुस्तान की जानिब पहला शहर जबलपुर था, लेकिन यूं ही दरबदर होने का फायदा नहीं था। अगर मैं बांडा में पुलिस वालों से महफूज हूँ तो फिर मुझे इसी जगह रहकर उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए जब दिल्ली जाने वाले रेलवे ट्रैक खुल जाएं, और अगर बांडा में मैं महफूज नहीं हूँ तो जबलपुर और नागपुर में भी महफूज नहीं होगा। जहां तक बांडा का ताल्लुक था, यहाँ मुझे बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था। जिस खुफिया पुलिस वाले की ड्यूटी उस अंग्रेजी होटल में लगी हुई थी, तहकीक के बाद वो बेजरर साबित हो चुका था। 2-1 बार उसने शीला से मेरा रस्मी तौर पर पूछा था, उसके बाद वो मुझसे बेनियाज हो गया था।
मुझे यकीन था कि सैलाब उतर जाएगा और दिल्ली का रेलवे ट्रैक बहाल हो जाएगा। चुनाचे मैंने फैसला किया कि 2-1 रोज की बात है, मुझे इसी होटल में ठहरे रहना चाहिए। एक तो ये होटल शहर से बाहर गैर आबाद जगह पर था, दूसरे ये इंग्लिश टाइप का होटल था, यहाँ बड़े अमन सुकून की फजा थी। मैं सोने की तैयारियां करने लगा। खैरियत रही कि काउंटर गर्ल मिस शीला फिर नहीं आई। मैंने बिजली का हीटर बंद कर दिया क्योंकि मैंने महसूस किया था कि कमरे में गर्मी ज्यादा हो गई है। वैसे भी उस इलाके में हिंदुस्तान की निस्बत सर्दी शदीद नहीं थी। उसके बाद मैं सो गया। सुबह मेरा होटल बॉय जासूस मेरे लिए बेड टी लेकर आया तो उसने मुझे जगाया। वो बड़ा पुरजोश लग रहा था, जैसे मुझे कोई नई खबर बताने को बेताब हो। अभी मैंने उससे कुछ न पूछा था कि मेरे पलंग के पास आकर कालीन पर बैठ गया और पुरस्कार अंदाज में बोला, साहब होटल में एक अंग्रेज जासूस आया है। मैंने कोई तवज्जो न दी। चाय का घूंट भरने के बाद हंसकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जासूस हैं? होटल बॉय बोला, साहब मैं 2 बातें उसकी आपको बताता हूँ। पहली बात यह कि उस अंग्रेज के पास एक छोटा अटैची केस है जिसको वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता। मैं उसे कमरे में लेकर गया और कहा, साहब ये अटैची मैं अलमारी में रख दूं? तो उसने कहा, नहीं मैं खुद रख लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, और दूसरी बात कौन सी है? होटल बॉय कहने लगा, साहब दूसरी बात आप सुनेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि वो कोई जासूस है। अच्छा बताओ। होटल का लड़का जरा मेरे करीब आकर बोला, साहब ये अंग्रेज वायरलेस पर किसी से खुफिया बातें कर रहा था। मेरे जरा से कान खड़े हुए, मगर इसके बावजूद मैं खामोशी से चाय पीता रहा। इसके पास वायरलेस कहां से आ गया, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो वायरलेस सेट है? होटल बॉय बोला, साहब मैंने बड़े जासूसी नावल पढ़े हैं, मुझे जासूस बनने का शौक है। मैंने नॉवलों में पढ़ा है कि वायरलेस सेट बड़ा भी होता है और छोटा भी, और बाज जासूसों के पास ऐसे वायरलेस सेट भी होते हैं जो उन्होंने सिगरेट की डिब्बियों या पेन के अंदर फिट कर रखे होते हैं। मैं थोड़ा संजीदा हो गया था। मैंने प्याली तबाई पर रखते हुए उससे पूछा, और उस अंग्रेज के पास किस किस्म का वायरलेस सेट था? होटल बॉय ने कहा, साहब उसके पास छोटी सी टॉर्च थी, उसने टॉर्च के अंदर वायरलेस सेट लगाया हुआ था। अब मैंने उससे बड़ा अहम सवाल पूछा, तुम उसे कहां से देख रहे थे? वो राजदारी से कहने लगा, साहब होटल के नौकरों ने हर कमरे के दरवाजे खिड़कियों में खुफिया सुराख रखे हुए हैं। इन सुराखों से वो कमरे के अंदर लेटे हुए औरत मर्द की सारी हरकतें देखा करते हैं। उस अंग्रेज के कमरे के दरवाजे में भी एक सुराख है, मैंने उस सुराख से देखा है। फिर उसने मुझे सारी बातें बयान करते हुए कहा, साहब ये अंग्रेज रात को कोई 10 बजे के करीब होटल में एक टैक्सी पर आया था। इसने बताया था कि वो हैदराबाद दक्कन से बंबई जा रहा था, मगर सैलाब की वजह से आगे ट्रेनें बंद हैं, इसलिए होटल में ठहर गया है। साहब ये अंग्रेज उर्दू भी अच्छी तरह बोल लेता है। मैं उसे कमरे में लेकर गया तो उसके हाथ में अटैची केस था, जिसको उसने बहुत संभाल कर पकड़ा हुआ था। कमरे में जाकर मैंने अटैची केस लेकर अलमारी में रखना चाहा तो उसने मुझे अटैची केस को हाथ न लगाने दिया। इसलिए मुझे फौरन शक पड़ गया कि उस अटैची केस में कोई खास नक्शा है और ये अंग्रेज कोई जासूस है। रात को खाना लेकर भी मैं ही उसके कमरे में गया था। अभी मैं कमरे के बाहर ही था कि मुझे अंदर से बातें करने की आवाज आई। मैंने दिल में सोचा कि ये अंग्रेज कमरे में अकेला था, अब ये किससे बातें कर रहा है? मैंने खुफिया सुराख में से देखा तो साहब उस अंग्रेज के हाथ में टॉर्च थी, जिसका पिछला हिस्सा उसने खोल कर रखा हुआ था और अपने मुंह के साथ लगाकर अंग्रेजी में किसी से बातें कर रहा था। मैं फौरन समझ गया कि वायरलेस पर किसी से बात कर रहा है। अब आप ही बताएं साहब, क्या ये अंग्रेज जासूस नहीं? मेरे दिल में एक शक यकीन की सूरत इख्तियार करने लगा। मैं अहमदाबाद में रॉ के चीफ गोकुलदास पांडे के बंगले पर बाज इसराइली फौजी माहिरीन को आते जाते देख चुका था, और ये बात भी मेरे इल्म में आ चुकी थी कि भारतीय वजारत दिफा ने इसराइल की हुकूमत के साथ न्यूक्लियर तवानाई हासिल करने और इंडिया में नजदीकी और दूर मार मिसाइल तैयार करने और एटमी सलाहियत हासिल करने का एक खुफिया मुआहिदा कर रखा है, जिसके तहत इसराइली फौजी और न्यूक्लियर साइंस के माहिर इंडिया में आ चुके हैं, और ये सारी एटमी सलाहियत हासिल करने की तैयारियां एटम बम और जौहरी रॉकेट बनाने और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के सिलसिले में की जा रही हैं। जब उन सारी कड़ियों को मैंने अपने जहन में जोड़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हो न हो ये कोई इसराइली फौजी माहिर है जो हैदराबाद से बंबई जा रहा है, और उसके ब्रीफ केस में यकीनन बाज कारामद खुफिया राज होंगे जिन्हें मालूम करना पाकिस्तान के कौमी तहफ्फुज़ की खातिर जरूरी है। ये बात भी थी कि भारत ने उस जमाने में भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के अलावा हैदराबाद दक्कन में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर कायम किया हुआ था, और मेरी इत्तला के मुताबिक बंबई में एक नया एटमी रिएक्टर लगाया जा रहा था। मैंने होटल बॉय के सामने किसी गर्मजोशी का इजहार किए बगैर कहा,
अच्छा, अगर तुम उस अंग्रेज को जासूस समझते हो तो क्या तुम एक काम कर सकते हो? होटल बॉय ने, जो मुसलमान लड़का था, सीने पर हाथ रखकर कहा, साहब आप बताएं, मैं जरूर करूंगा। मैंने कहा, किसी तरह उस अंग्रेज के ब्रीफकेस में जो कागजात वगैरह रखे हैं वो निकाल कर मेरे पास ले आओ। उसके बाद मैं कोई फैसला कर सकूंगा कि ये अंग्रेज जासूस है कि नहीं। होटल बॉय ने कहा, यह मुश्किल काम है साहब, लेकिन जब अंग्रेज जासूस कमरे से बाहर जाएगा तो मैं उसके अटैची केस को खोलकर सारे कागज निकाल कर आपके पास ले आऊंगा। मैंने हंसकर कहा, तुम उसका ताला कैसे खोलोगे? जासूस ऐसा ताला लगाते हैं जिसकी चाबी और किसी के पास नहीं होती। होटल बॉय ने कहा, मेरे पास एक तार बना रखी है जिससे हर किस्म का ताला मैं खोल लेता हूँ, आप फिक्र न करें, बस उस अंग्रेज को बाहर जाने दें। हाँ, अगर वो अटैची केस साथ ले गया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल था कि वो ब्रीफ केस को अटैची केस कह रहा था। मैंने उसकी वजाहत के वास्ते होटल बॉय से पूछा कि उस अंग्रेज के पास चमड़े का थैला है या छोटा केस है। होटल बॉय ने हाथ हिलाकर कहा, साहब जी, मैंने चमड़े के थैले देखे हैं, उसके पास थैला नहीं है, अटैची केस है, छोटा अटैची केस। मेरा ख्याल है उसमें उसके कपड़े भी हैं। तब मुझे यकीन हो गया कि ये अंग्रेज, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो अंग्रेज नहीं बल्कि इसराइली है, अगर बाहर गया तो अटैची केस कमरे में ही रख कर जाएगा। इतना जरूर के बाहर जाते वक्त होटलों में जैसा होता है, कमरे की चाबी काउंटर क्लर्क को नहीं देगा बल्कि अपने साथ ले जाएगा। मैंने होटल बॉय, जिसका नाम महमूद था, उसे मजीद एतमाद में लेते हुए 20 रुपए दिए और कहा, महमूद, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि जब ये अंग्रेज जासूस बाहर जाए तो फौरन उस अटैची केस में से जितने कागज हैं निकाल कर मेरे पास ले आओ। मैं थोड़ी देर उन्हें देख कर वापस कर दूंगा। होटल बॉय रुपए लेकर खुश हुआ, कहने लगा, साहब आप बेफिक्र रहें, मेरा ख्याल है कि वो किसी न किसी वक्त होटल से जरूर जाएगा। मैंने होटल बॉय को यह भी ताकीद कर दी कि वो इस बारे में होटल के किसी मुलाजिम से बात न करें। वो सीने पर हाथ रख कर बोला, साहब, कामयाब जासूस तो वही होता है जो अपना राज कभी किसी को न बताए। मैं जाता हूँ। जब वो चला गया तो मैंने सिगरेट सुलगाया और कमरे में टहलते हुए सोचने लगा, मुमकिन है इस शौकिया जासूस लड़के की वजह से भारत के किसी खुफिया एटमी प्रोग्राम का राज मेरे हाथ लग जाए। मैंने मुंह हाथ धोया और टीवी ऑन कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर सैलाब की सूरत हाल के बारे में बताया जा रहा था। इन इतलात के मुताबिक अभी तक दिल्ली की तरफ रेलवे ट्रेनों की आमदोरफ्त बिल्कुल बंद थी। मुझे अब कोई जल्दी नहीं थी। मैं जब तक उस इसराइली के अटैची केस के कागजात को न देख लेता होटल से नहीं जा सकता था। काउंटर पर से मिस शीला का फोन आ गया। कहने लगी, सॉरी सर, आपकी टर्म खत्म हो गई है। अगर आप होटल में मजीद ठहरना चाहते हैं तो प्लीज हमें आकर बता दें। ये बहुत जरूरी था। मैं फौरन होटल की पुरानी किस्म की छोटी सी लॉबी में आ गया। मिस शीला मेरी तरफ देखकर ज़ेर लब मुस्कुराई। मैंने उसे बताया कि मुझे दिल्ली जाना था, मगर दिल्ली कोई ट्रेन नहीं जा रही, इसलिए मजबूरन मुझे होटल में मजीद रुकना पड़ेगा। मिस शीला रजिस्टर निकाल कर कहने लगी, सर आप कितनी देर और रुकना चाहेंगे? मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर उसे दिया और कहा, 2 दिन तो जरूर ठहरूंगा। मिस शीला ने मेरे हिसाब में रकम जमा कर दी। मैंने खास तौर पर देखा कि खुफिया पुलिस वाला आदमी वहां नहीं था। मैंने उसे पूछा कि जहां जो आदमी तुम्हारा पहरा देता है वो नहीं है? मिस शीला ने हंसकर कहा, वो तो सारे होटल का गार्ड है, दोपहर को कहीं आएगा। एक और आदमी काउंटर पर आ गया। मैं बरामदे में अपने कमरे की तरफ आ रहा था। बरामदे के आखिरी कमरे में से मैंने एक गोरे आदमी को बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे को ताला लगाते देखा। यकीनन वो इसराइली फौजी मुशीर था, जिसको होटल वाला लड़का अंग्रेज समझ रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि उसके हाथ में अटैची केस नहीं था। वो बड़े आला किस्म के हल्के ब्लू रंग के सूट में मलबूस था। मैं अपने ध्यान में चलता चला गया। वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने आंखों के किनारे से उसका जायजा लिया। उसका रंग उतना गोरा नहीं था। ये इसराइली ही था, यकीनन यरूशलेम का रहने वाला था, जिसकी वजह से उसका रंग थोड़ा हल्का पड़ गया था। उसके भूरे रंग की छोटी छोटी मूछें भी थी। उम्र 40 साल से कुछ ऊपर लग रही थी। मेरा कमरा उसके कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। मैं अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके बेचैनी से टहलने लगा। दिल में यही दुआ कर रहा था कि होटल बॉय महमूद इस मौके से फायदा उठा ले। खुदा करे कि उसे मालूम हो गया हो कि अंग्रेज जासूस अपने कमरे से जा चुका है। मेरा दिल चाहा कि मैं महमूद को तलाश करके उसे ये खुशखबरी खुद सुना दूं, मगर मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था और मैंने ऐसा न किया। बस सब्र करके अपने कमरे में ही रहा। मेरे लिए ये वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बार मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बरामदा खाली था। मैं इंतजार करते करते वापस पलंग पर आकर दराज हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।